Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira. Saira ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन आपका स्पीकर ऑन है. Your voice is not here. Ma'am, your voice is not here. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आप लेकिन आपका बोल रहे पर स्पीकर ऑन आपकी है. आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ मैम आवाज नहीं आ अभी आ रही है आवाज? कैन यू हियर Yes, नाउ? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है मैम. Okay, fine. So we will start our class by chanting Omkaram 3 times. So please join your hands. Sai Ram children, welcome to today's class and I have lots to show you today. So class, I think it will be very interesting. We have done the lesson, The Little Bully, and we have done the reading and I will explain to you the lesson. You know it very well. I need not explain that there was a small child named Hari. Okay. And what he used to do, he had very bad habit of pinching other friends and pinch the other and teacher. pricking them with a pin. So no one was his. Everyone avoided him because they didn't want to get hurt and he did not have any true friend. One day what happened, they went to a trip to sea beach, okay, or seaside. It's the same thing. So they went to the beach and they went there for a picnic. He carried his lunch box, but since no one was his friend, तो उसने शेयर नहीं किया, अकेला जाके पूल के पास बैठ गया and he started having his lunch. He began to have his lunch when what happened? One crab came out and bit him, not bit him, it pinched him with its pincers, okay? And then what happened? One lobster also came and it pinched it. Then shrimps and prawns and more lobsters also came. They all started pinching him. And what happened? He, by mistake, due to all this, he dropped his lunch, okay, and in the pool, and they went to have his lunch. And getting that chance, he ran away from that place. तो उसको उसके बाद सबसे important, we are going to see it. I will just say it, okay? And then he realized at the end that वो जब पिंच करता था फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स को कैसा लगता था. They were really it was really painful to having been pinched by Hari. और उसको हरी को रियलाइज कब हुआ? जब क्रैब ने, लॉबस्टर ने, श्रिम्प्स ने, प्रॉन्स ने सब मिलके उसको पिंच किया, तो उसको फील हुआ कि दिस इज सो पेनफुल एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू पिंच एनीवन.
तो उसको रियलाइज हो गया और वो अपना लेसन सीख गया. He learnt his lesson. Okay, now I will be sharing my screen. I have two presentations to show you. So without wasting much time, I will go to the presentation. I have one request for all of you. Okay, since you are smart enough, switch off all your videos instantly. I will also switch off my videos to get better connection. Yes, ma'am. Very good. Excellent. श्रेया अपना वीडियो ऑफ करो. Yes, I will be sharing my screen to show you the presentation. Oh, brilliant. Okay, now I hope it's visible to you. Yes, good. Now I will show you the. Ma'am, your voice is not मेरी clear. आवाज नहीं आ रही. Ma'am, your voice is Ma'am, Okay, then. Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. आवाज आएगी बेटा. Ma'am, your voice is not 1 minute. Ma'am, your voice is not clear. जस्ट वेट 1 मिनट बेटा. आप लोग बड़े हो ना, तो 1 मिनट क्या हो सकता है, कोई डिस्टरबेंस हुआ है तो आप रुक जाओ स्टेबल होने तक, क्योंकि स्क्रीन शेयर किया मैंने. जस्ट वेट 1 मिनट, फिर स्टेबल हो जाएगा तो आवाज ठीक आएगी. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now voice is clear. Now it has come Microsoft PowerPoint. Okay. I think now you can see the screen. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, Oh, Yes, okay. ma'am. visible. Oh, Ma'am, very it's good. written CBSE class 5 English Communicate. Yes. Correct. Okay, now I will, as Alankrita has said, I will go to the word meanings first. Okay? Let me read the word meanings for you. Bully. Bully means just like Hari, we have said, that is someone who tortures. Yes, someone who gives the pain. That person is called a bully. Sorry. Huh. And next is tease. Tease means making fun, chirana. Okay, that is tease. Bruise matlab last day we explained injury by strike. बेटा किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. स्विच ऑफ योर माइक. Yes. Bruise matlab injury by striking where no blood loss takes place. हमने लास्ट डे एक्सप्लेन किया था, कभी भारी चीज से हमें स्ट्राइक होता है और हमें चोट लग जाती है तो ब्लड लॉस नहीं होता है, लेकिन इंटरनल टिश्यू डैमेज हो जाती है और ब्लू और ब्लैक निशान बन जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ ब्रूज व्हेन नो ब्लड लॉस टेक्स प्लेस बट you get hurt internally. Switch off your mic. Okay, ma'am. बच्चों अभी आप लोग स्मार्ट हो, अभी बड़े हो, you know whose mic is on. Ma'am, Hardik mic off करो. Ma'am, चलो, Hardik Hardik off करो. sounds by his mouth like this. हाँ, Ma'am, Hardik, switch off your mic. ma'am, I don't understand the meaning of this third word. Okay, I am telling once more. Bruise. It is called bruise. Repeat. Bruise.
Yes. Ma'am, what is the Injury meaning by of striking. striking? Ma'am, what is the meaning of मैं बोलती striking? हूँ. Yes, I am explaining. Striking means अगर कोई भारी सी चीज से टकराना. With heavy object, if we hit against any heavy object, that is called striking. मान लो पत्थर में हमारा पैर लग गया या हाथ लग गया, भारी सा पत्थर है या टेबल है, वहां पे हमारा हाथ या पैर लग गया तो ब्रूज हो जाएंगे, यानी अंदर ही अंदर टिश्यू डैमेज हो जाएगा लेकिन कोई ब्लड लॉस नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड ब्रूज. Okay, ma'am, I understand now. यस. तो ये मैम, ब्रूज में क्या एक्सपेरिमेंट ब्लड क्लॉट होता है? ब्लड लॉस नहीं होता है. सी इन द ब्रैकेट मैम, ब्लड क्लॉट मैम, मैम क्लॉट बेटा क्लॉट तब इसे होता है जब ब्लड निकलता है. ब्लड ही नहीं निकला तो क्लॉट कैसे होगा? अच्छा. यस. ओके मैम. मैम इसे लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, और यू कैन डू वन थिंग, यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन स्क्रीनशॉट और बाद में धीरे से आहिस्ते से लिख लेना. ओके, यू आर स्मार्ट इनफ एंड टेक्नोलॉजी इज देयर, सो बाद में लिखो. बेटा मैंने आपका आंसर दे दिया. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ एंड राइट डाउन लेटर ऑन. ओके. नेक्स्ट इज टेलिंग टेल्स, यानी गॉसिप करना. डू गॉसिप अबाउट. गॉसिप यानी इसको उसको बताना सारी चीजें और विद स्पाइस, दैट इज कॉल्ड गॉसिपिंग. टेलिंग टेल्स मतलब गॉसिप करना. नेक्स्ट इज अराइव्ड. अराइव्ड मींस रीच. यस. What's the meaning of Yes. gossip? गॉसिप यानी झूठ मूठ का बना के इसको उसको उसके ऊपर और मतलब ये ऐसी बना के उसको इसकी चीज उसको बोलना. टू स्प्रेड रूमर्स मे बी यू कैन से. Ma'am? Yes. It is said in the negative sense. Yes. Tell me. मैम टेलिंग टेल्स का हम वर्ड मीनिंग ये भी लिख सकते हैं, वन हु टेल्स द टेल्स. नहीं, टेलिंग टेल्स मतलब गॉसिप करना, यानी टेलिंग टेल्स मतलब कहानी सुनाना नहीं, झूठ मूठ का कहानी सुनाना, गॉसिप करना. दैट इज द सेम थिंग. ओके मैम. जब हम टेलिंग टेल्स मतलब स्टोरीज है, एक तरह लेकिन से जब हम झूठी तारीफ. गॉसिप. Yes, Ma'am, we next can is say arrive. telling fake things. Telling fake things. Yes, ma'am. नहीं, बार बार एक ही करना. मन खुली. इसको झूठ मूठ का बोलना, बार बार बोलना, झूठ मूठ का बोलना, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना. Telling fake things. Telling fake things. Arman, telling things. We can also say sneak on someone. Just like we sneak on someone. Not exactly speak on someone. Okay, you can say rumor spread karna, telling the same thing again and again. Okay. Next is arrive means reach. Then hoarse means rough and heavy. Hoarse voice मतलब rough और heavy voice. कुछ इंसानों के होते हैं बहुत rough और heavy voice होता है, उनको कहते हैं hoarse voice. Then fright. Next word, fright. Fright means fear. Full of fear. Stalks. Stalks means main stem. अगर हम स्टॉक कहते हैं तो एक प्लांट का मेन स्टेम रहता है, उससे ब्रांचेस निकलते हैं, तो वो मेन स्टेम को स्टॉक कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज क्वेयर. क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज और peculiar. Strange. Ma'am, I don't understand stocks meaning. Care. Stocks meaning. Fright means fear, डर लगना, full of fear. And stalk means main stem. आपने एक प्लांट देखा है, ट्री देखा है ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. उसका जो मेन ब्रांच रहता है, मेन ब्रांच जो रहता है, मेन
रहता है, trunk, rather. That is the stalk. Ma'am, but I have no understand of word queer. Queer means strange or peculiar. Queer यानी strange, अजीब looking, अजीब सा दिखने what is वाला. the That is meaning of called queer. peculiar? Please concentrate what ma'am is saying. Queer means strange यानी अजीब दिखने वाला. If you have any doubt, later on you can ask ma'am also in WhatsApp. Then I will help you. Next is claw. Claw, I told you a lot of things to show, so please give me some time. Claw means curved or pointed nails or digits of animals. यानी claw मतलब पंजा. In one word we can say. जानवर के पंजे होते हैं ना, that is called the claw. और हमने ये EVS में भी किया था ना, claws and beaks of birds and animals. Do you remember in EVS we did? In fourth, I think. No, ma'am, third. I think it was in fourth. पता नहीं, I don't Yes, remember. ma'am. Okay. Okay. So it is claw is that sharp and pointed nails or digits. Digits मतलब यहाँ पे fingers है. Pointed nails रहते हैं fingers पे animals के, उसको कहते हैं claw. और 4 या 5 डिजिट्स रहते हैं या उंगलियां रहते हैं, फिंगर्स रहते हैं, उसको मिला के बनता है एक क्लॉ. ये जानवर के होते हैं, इंसान के नहीं. देन नेक्स्ट इज सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट. सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. दैट इज अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो होने वाला है, दैट इज सरप्राइज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पिंसर्स. पिंसर्स मैंने आपको वीडियो भी भेजा था क्रैब का, उसमें मैंने पूछा था, बोला था कि फोकस ऑन द पिंसर्स, और आपने देखा था साइडवेज चल रहा था क्रैब, देखा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा था. Yes. See a hinged and sharp pointed organ used by an arthropod for feeding or defense. यानी पिंसर्स, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो 1 सेकंड में आपका क्लियर हो जाएगा. वही मैं दिखाना चाहती हूँ बाद में. सो प्लीज गिव मी अ चांस टू शो दैट. पिंसर्स यानी जो फ्रंट में मुंह के सामने जो उसके लिम्स जैसे रहते हैं ना, लेग जैसे रहते हैं, वो असल में लेग नहीं, पिंसर्स है. उससे क्या करते हैं, हमारे हाथ जैसे काम करते हैं. आवर हैंड्स वर्क like we are picking up food with our hand and putting in the mouth. Crab same thing ये करती है pincers के साथ. It helps in cutting the food. के भी होते हैं ना हाँ मैम, ants के भी होते हैं ना pincers? ants के pincers नहीं होते बेटा, मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके सो इससे क्या करते हैं, ऑर्गन ऑफ डिफेंस ऑल्सो. डिफेंस मतलब अगर कोई आ रहा है और ये डेंजर फील करता है तो इससे ये लड़ भी सकता है. ऑर्गन ऑफ डिफेंस मतलब खुद को डिफेंड करना, खुद को सेव करना. और फीडिंग मतलब खाना खाना. तो ये खाना पकड़ के उसको मुंह में भी डालता है. जैसे आप हाथ को यूज करते हो, अपने हैंड को फूड उठाते हो और मुंह में डालते हो, सेम थिंग. मैम आपका प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन क्या हुआ? No, ma'am, आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है. मैम सारे प्रेजेंटेशन दिख तो रहा है, लेकिन ना वो बहुत छोटी स्क्रीन में दिख रहा है. मैम अब तो छोटी ठीक हो स्क्रीन गया. में किया ना. यस मैम अब आ गया. ठीक है. मैम एक बड़ी साइज में यस मैम अब आ गया. ओके अभी पावर पॉइंट नहीं आया. हाँ अभी सारी और प्रेजेंटेशन. yes just give it some time.
यस, अभी आ गया होगा। मैम इस पे नहीं थे हम। नाउ विजिबल द स्क्रीन। अभी आ गया वो वाला पेज। यस मैम। Yes, ma'am. आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now is nipped. Next word is nipped. Nipped यानी pinched. Okay, it is the same thing. Yelled. Yelled यानी shouted. चिल्लाना. Okay. Next word is pleasantly. Pleasantly मतलब pleasingly, जिससे हम खुश होते हैं. Pleasantly surprised हम बोलते हैं, यानी हम खुश हो जाते हैं जिस चीज से. Lobster is an arthropod, a giant shrimp. लॉबस्टर की पिक्चर हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी आज अच्छे से. और ये एक जाइंट श्रिम्प. श्रिम्प आपने झींगा देखा है, जो लोग Yes, ma'am. को भी खाते हैं उनके लिए कॉमन सी बात है. तो वो एक Yes, ma'am. Chinese खाना है. यस, चाइनीज खाते हैं, इंडियंस भी खाते हैं, मॉलिस भी खाते हैं, फिर साउथ इंडियन Yes, ma'am. लेकिन ये चाइना में बहुत ज्यादा ही खाया जाता है. महाराष्ट्रियंस भी खाते हैं. बेटा हम लोग मॉलिस हैं, हम चाइना में कॉमन है. बंगाल में भी कॉमन है, हम लोग खाते हैं बहुत. एनीवेज, shrimps Ma'am, a free swimming arthropod. Okay, free swimming arthropod. Sorry, yes. Ma'am, arthropods means Arthropod हमने किए थे फोर्थ में, आपको याद नहीं है? Someone, an animal with jointed legs. ये jointed legs है. क्रैब का पिक्चर देखो, याद करने की कोशिश करो. jointed legs यानी दोनों साइड में सेम सेम. दो साइड. हाँ, बॉडी को अगर सुनो एक्सप्लेन करने दो मुझे. बॉडी को अगर हम बीच में से काटेंगे दोनों हाफ्स में, एग्जैक्ट सेम लेग्स रहेंगे दोनों साइड में, उसको कहते हैं जॉइंटेड लेग्स. जॉइंटेड एपेंडेजेस और जॉइंटेड लेग्स. आर्थ्रोपॉड जो होते हैं उनके एग्जैक्ट होते हैं, सेम सेम होते हैं दोनों साइड में बॉडी के. और इंसेक्ट्स, ज्यादातर इंसेक्ट, ज्यादा नहीं, सब इंसेक्ट्स आर्थ्रोपॉड में बिलोंग करते हैं. हमारे वर्ल्ड में जितने एनिमल्स पाए जाते हैं उनके 90%, हमारे वर्ल्ड में जितने एनिमल्स पाए जाते हैं उनके 90% एनिमल्स आर्थ्रोपॉड फाइलम के ही होते हैं, और बाकी 10% सारे एनिमल्स को मिला के होते हैं. तो यू कैन इमेजिन इज द मेजॉरिटी आर्थ्रोपॉड्स ही होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज श्रिम्प. बेटा थोड़ी देर वेट करो, स्टेबल होगा तो आ जाएगा. और अपना वीडियो ऑफ करो, अपना वीडियो और माइक ऑफ करो तो शायद आ जाए थोड़ा सा. मैम स्क्रीन नहीं है. मैम स्क्रीन है. अभी ये कैसे सुना आपने? मैंने जब बोला कि ऑफ करो, कैसे सुना आपने? ओके, नेक्स्ट इज चैंपियन या एक्सपर्ट. हो गया. नेक्स्ट इज ईगरली. ईगरली मीन्स स्ट्रांगली वांटिंग टू डू समथिंग. ये पेज आ गया, ईगरली वाला पेज आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, eagerly means strongly wanting to do something. Okay, बहुत इच्छा है, strongly इच्छा है कुछ करने की. I am eagerly waiting to do it. Okay, next is streaming यानी flowing. ये आपका वो नेटफ्लिक्स वाला स्ट्रीमिंग नहीं है, वो भी स्ट्रीमिंग होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीमिंग का मतलब है फ्लोइंग. Tears are streaming down his cheeks यानी tears are flowing down his cheeks. बहुत रो रहा है और ऐसे फ्लो कर रहे हैं tears. Next is suppose. Suppose means guess. I suppose means I guess या I feel या I hope, कुछ भी बोल सकते हो. Jolly well मतलब very well. I know it jolly well यानी I know it very well. और लास्ट इज shan't. Shan't एक शॉर्ट फॉर्म है shall not का. I shall not do it. I shan't do it. Okay, ये एक शॉर्ट फॉर्म है. Yes, ma'am. Next,
नेक्स्ट ये है, आपके बुक का ही हिस्सा है ये, आप बुक में भी देख सकते हो बाद में. अ क्रैब हैज हार्ड शेल whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from enemies with outer shells, quills or cover. In the box, names of some animals are given which protect themselves from hard cover. ये आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताने वाली. आपको खुद से करना है और ये पेज क्लिक मार के व्हाट्सएप पे भेजना है. कौन कौन से एनिमल्स के नाम यहाँ पे है, किस किस के शेल होते हैं, बाहर एक शेल होता है. मैम आपके पर्सनल नंबर पर? नहीं, ग्रुप में. मैम लेकिन ग्रुप तो only ओनली admins एडमिन्स कैन can- सेंड है. Yes, हाँ, ma'am. ग्रुप में तो ओनली एडमिन्स कैन सेंड लिखा है. ओके ओके, तो फिर पर्सनल पे भेज देना. मेरे सामान पर. ओके मैम. ओके, वो एडमिट है. ओके मैम. एडमिन नहीं है वो, एडमिन्स है. एडमिन. now let us see the Tata classes. Ma'am, I have write the all word meaning. Okay, very good. नहीं तो बाद में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तब भी आप कर सकते हो. और अगर आपने अभी ले लिया स्क्रीनशॉट तो वेरी गुड, यू कैन डू इट इटसेल्फ नाउ. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके, वेरी गुड. मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया. मैंने तो लिख लिया. ओके, आपको टाटा क्लासेस का पेज दिख रहा है ना? यस मैम दिख रहा है. Yes, ma'am. यस मैम दिख रहा है. मैम मैम दिख रहा है. Okay, now we will see the video for this. Now I can't guarantee you with the sound. Okay, कभी कभी साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी ठीक आ रहा है. So I can guarantee you. Let us see. Let us hope that it comes. Yes. It has loaded now. Has the screen come now? Yes, ma'am. The screen The has video. come. Yes, ma'am. Okay. Has come. Yes, ma'am. Sound आ रहा है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, मैम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. Okay, you can see the writing on the top. They are reading just that. Yes. मैम प्रेजेंटेशन गया. Yes, ma'am. यस मैम. प्रेजेंटेशन लग गया. है Ma'am, Just a minute. presentation. नक्षत्र, आपका वीडियो क्यों ऑन है? स्विच ऑफ योर वीडियो.
अभी दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी दिख रहा है. मैम पहले भी दिख रहा था. Session has नहीं, expired. किसी ने कहा कि इट इज लॉक्ड आउट, इसलिए. मैम आप एक बार वीडियो वापस से दिखा दीजिए, Just- बहुत डिस्टर्ब हुआ था, अच्छे से देख नहीं पाए सुनो, थे. अगर हमें और किसी को जाना है, किसी को पापा को करना है, तो यू कैन ऑलवेज लीव द क्लास. एंड मोइन, आई डोंट वांट यू टू रिमाइंड मी कि टाइम इज अप, टाइम इज ओवर, इट इज 10:15. आई डोंट वांट यू टू रिमाइंड मी. आई कैन सी द टाइम. अगर आपको जाना है, आई एम गिविंग यू परमिशन, देन यू कैन लीव आफ्टर 10:10 बिकॉज हमारे क्लास का टाइम 10:10 तक ही है. ओके मैं एक्स्ट्रा आपको दिखाना चाहती हूँ. यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है 5-10 मिनट ऑनलाइन में. दैट्स वाई आई टेक एक्स्ट्रा टाइम. बट इफ यू फील कि आपको जाना है, देन यू कैन ऑलवेज लीव. साइलेंटली यू कैन लीव. I hope you can see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can see. अगर आपको साउंड नहीं आ रही है, अगर आपको साउंड नहीं आ रही है, तो ऊपर है वो राइटिंग को पढ़ लेना. बस वो राइटिंग से ही रीडिंग ये लोग वीडियो में. सो यू कैन रीड द राइटिंग. मैम साउंड है. This is the story of a little boy who enjoyed teasing his classmates. Hari was a little boy. The children in his class hated him because he pinched and pricked them. One day, the class went to the beach for a picnic. The other children did not sit with Hari or play with him because they knew he would pinch them. Hari went and sat near a small pool and decided to have lunch by himself. Suddenly, a big crab came out of the pool and bit his hand hard. Soon, shrimps, pickles, and lobsters came out of the pool and began nipping and pinching Hari. Poor Hari cried in pain, realized how much he had hurt his feelings. He decided to stop pinching others. Okay, was the sound audible? Ma'am, a bit. Yes. Yes, ma'am. थोड़ा सा. But we read the subtitles and we understood. Oh, okay, Yes, good. ma'am. That's like big children. Okay, अब हम बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज करेंगे. ये हमारे टाइम का वो खत्म हो गया. अब हम बाहर का कुछ करते हैं. Since we are big children, we must study something extra and very interesting. Ma'am, Who wants to study? Yes, who wants to see that? Ma'am, Me. Ma'am, me. Ma'am. Ma'am. Okay, good. Okay, good. Now let us see. Sound be clear. Sound are also Let us- clear. Let us see. This is called supplementary material. जैसा कि हमने वो इनेट ब्लाइटन के टाइम पर भी किया था, कुछ supplementary, कुछ extra. This is something extra which I have prepared for you. Can you see the screen? Just tell me, respond. क्योंकि Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Let us begin. Next, हम वाटर एनिमल्स के बारे में जान ले, क्योंकि हमने क्रैब को देखा है, लॉबस्टर, श्रिम्प, प्रॉन, बहुत सारे आए हैं यहाँ पे. बताना चाहती हूँ वाटर एनिमल्स के बारे में. आई विल गो ऑन रीडिंग.
Water animals are also called aquatic animals because aqua means water. ये आपको पता ही होगा, aqua means water. तो aquatic animals बोलते हैं water animals को. This is common term. और water animals 3 प्रकार के होते हैं. There are 3 types: salt water और saline water animals, fresh water और sweet water animals, और brackish water animals. सॉल्ट वाटर मतलब जो समुद्र में रहते हैं जहाँ पे बहुत नमक होता है पानी में. फ्रेश वाटर मीन्स या स्वीट वाटर, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम. इसमें खारा पानी, मीठा पानी होता है, जैसे कि रिवर, लेक, स्ट्रीम, ऐसे. और ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पे मिक्स रहते हैं, जहाँ पे यू मस्ट बी नोइंग कि नदी जाके समुद्र में मिलती है, रिवर्स और फॉल इनटू द सी. तो दैट प्लेस में जहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं सी में, तो वहां पे एक मिक्सचर रहता है. वहां पे पानी में थोड़ा सा नमक भी रहता है, लेकिन थोड़ा मीठा भी होता है, तो मिक्सचर रहता है. मतलब steady. वाटर मतलब सेमी इज नॉट द करेक्ट वर्ड. ब्रैकिश कहना परफेक्ट है. No, ma'am, saline water and saline water. मैम saline water. ये सलाइन वाटर. सलाइन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर. सलाइन जो मतलब पेशेंट्स को दिया जाता है, उसमें नमक तो होता है पानी के साथ, दैट्स ऑल. जो नमक हम टेबल में यूज करते हैं खाने में, वो ही रहता है पानी में मिला के सोल्यूशन बना के. दैट इज सलाइन. सलाइन वाटर यानी सॉल्ट वाटर, खारा पानी. नेक्स्ट, salt water or saline water. These animals live in seas or oceans where the water is saline or salty. Salty रहता है. Animals can be living exclusively underwater or maybe sometimes they come ashore in search of food or breed. यानी वो ऐसा हो सकता है कि हमेशा से नीचे ही रहते हैं, जैसे कि फिशेस या तो क्रैब जैसे. कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं और कभी कभी पानी के अंदर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है. नेक्स्ट, these animals have highly specialized body parts to help them breathe underwater. तो इनके बॉडी पार्ट्स आपके जैसे नोज है, लंग्स है, हवा भरने के लिए आपके फेफड़े है, fins होती है. इनके भी गिल्स होते हैं. यस मैम. और मैम गिल्स क्या होता है? तेज स्विम करने में. मैम गिल्स क्या होता है? यहाँ पे जिससे वो सांस लेते हैं पानी में. मैम, पर व्हेल और डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते क्योंकि वो मैमल्स है. वो भी नोज से ब्रीथ करते हैं. लंग्स है आपके मैम, जैसे. डॉल्फिन और व्हेल के गिल्स, मैम, वो लोग नोज से ब्रीथ करते हैं. यस यस. Yes, यहाँ ma'am. पे आपको पिक्चर दिख रहा है ना, Gills तो mammals है. देखो ये फिशेस यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ. दे सक इन वाटर थ्रू माउथ एंड ब्रीथ आउट थ्रू द गिल्स. मुंह से पानी अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन भर जाता है और गिल्स से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. यहाँ पे गिल्स होते हैं. ओके, गिल्स की एक कवर रहता है, उसके नीचे गिल्स रहते हैं फिशेस के. शार्क्स के भी ऐसे रहते हैं गिल स्लिट्स. यहाँ पे देखो गिल स्लिट्स ऑफ शार्क, ऐसे ऐसे मार्क्स रहते हैं और यहाँ पर से गिल्स है शार्क्स के. क्रैब्स भी जब पानी के अंदर रहते हैं गिल्स से हवा लेते हैं अंदर, मतलब पानी ऑक्सीजन जाता है पानी के थ्रू और ये गिल्स से करते हैं. क्रैब्स के कहाँ है मैम? लेकिन क्रैब को गिल्स नहीं दिख रहे. और कहाँ पे है गिल्स? बाद में देखते हैं ना बेटा. फिर गिल्स और लॉबस्टर्स ऑल्सो. लॉबस्टर्स ऐसे होते हैं, देखो पिक्चर. ओके, इसके पिंसर्स देखो कितने बड़े बड़े हैं. ओके, लॉबस्टर्स ऐसे होते हैं. क्रैब से भी बड़े मैम. यस, एक्वाटिक एनिमल्स यानी सी एनिमल्स. ये दिखा आपको पेज? यस मैम. यस मैम. और सारे हैं. क्लियरली दिख. जेलीफिश, टर्टल, क्रैब, हर्मिट क्रैब, फिर सी, क्लाउनफिश, सील, वॉलरस, व्हेल, पेंगुइन, स्क्विड, ईल, कटलफिश, स्टारफिश, पोर्क्यूपाइन फिश, डॉल्फिन, लॉबस्टर, ये सारे सी एनिमल्स हैं. मैम होती है. मैम, इनसे भी ज्यादा सी एनिमल्स. मैम सी वाला स्नेक भी होता है ना? सैंड में भी
सरवाइव कर बेटा सकती हमारे 95% लाइफ जो पृथ्वी पर है, जो अर्थ में है, पानी के नीचे है। अब मैं किस किस को दिखाऊं आपको? Yes. ओके, 95% हमारे पानी के नीचे है। ज्यादातर पानी से और ही गिरी सारे है। वर्ल्ड में जितने मिलाके होते हैं उसके 5% ऊपर है लैंड में। 95% लाइफ समुंदर के नीचे रहता है। इतने टाइप के हैं जितने हमको अभी दिखे भी नहीं है साइंटिस्ट को भी, ऐसे भी है। अभी फ्रेश वाटर और स्वीट वाटर एनिमल्स, दीज एनिमल्स फ्रेश वाटर, दे लिव इन रिवर्स, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। ओके, मैं जल्दी करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अभी बहुत कुछ और भी दिखाना है। These animals have specialized organs मैम to... व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। बेटा आप यहाँ पे देख लो तो बेटर है। These animals can be living underwater and sometimes come ashore. Examples are like this: sea turtle, this bird grebe, troutfish, pufferfish, otter, pelican, bullfrog. ये फ्रेश वाटर एनिमल्स है। नेक्स्ट मैम ये बफर फिश जो बहुत मोटी रहती है क्या? मैम क्या? फिश अपने आप को ब्लो करती है एयर, पहले मोटी नहीं, ओके मैम, इट कैन ब्लो इन एयर। यस मैम। मैम ऑटर बहुत पुराने जानवर है ना? बहुत पुराने नहीं, फिश जैसे पुराने नहीं, लेकिन होते हैं पुराने। फिश उससे भी पुराने हैं। मैम वो अभी भी हैं क्या? यस है, वेरी मच। दैट इज ब्रैकिश वाटर, mixture of fresh water and saline water found in estuaries. Estuaries मतलब that part where river meets the sea. जब नदी जाके समुंदर में या सागर में मिलता है तो जहाँ पे मिक्सचर होता है दोनों पानी का, खारे पानी और मीठे पानी का मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश वाटर हैज मोर सॉल्ट देन फ्रेश वाटर बट लेस सॉल्ट देन सलाइन वाटर, यानी वो मिडिल वाला है। फ्रेश वाटर से ज्यादा नमक है लेकिन समुंदर के पानी से कम नमक है। ब्रैकिश वाटर क्रीचर्स कौन से होते हैं? ऐसे वाले होते हैं, जैसे कि गप्पी फिश, अमेरिकन मूनी, सेलिन मूली, मड स्किपर, ऐसे। नेक्स्ट ये देखो, मड स्किपर कौन सा जानवर है? मड स्किपर एक काइंड ऑफ फिश है जो मिट्टी को खोद खोद के खाती है। ओके देखो, ये जस्ट दिस इज सो कलरफुल, इजंट इट ब्यूटीफुल? मैम ये सब फिश अलग अलग है। रेनबो। अंडर वाटर लाइफ इज ऑल्सो वेरी कलरफुल, बहुत सुंदर है। जस्ट वन पार्ट। मिल सकती है। यस, जस्ट अ मिनट। अब हम टॉपिक पे आते हैं। क्रैब्स, ये देखो इतने टाइप ऑफ क्रैब्स होते हैं। ओके, क्रैब्स को देखा है ना, इतने टाइप ऑफ क्रैब्स होते हैं। Ma'am, the one crab that the man is holding is very big. और ये देखो the crab the man is holding. I mean, it is a crab. जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पिंसर्स देखो, ब्लू में मैंने सर्कल किया, यहाँ पे पिंसर देखा कितना बड़े हैं क्रैब के, और यहाँ पे भी पिंसर्स डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे देखो दिस पिक्चर ABCD करके जहाँ पर है, कितने सारे पिंसर्स है ना? और ये देखो ये क्रैब, इसको कहते हैं कोकोनट क्रैब। आपको जान के हैरानी होगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक तरह के क्रैब पाए जाते हैं जो कि, सुनो ध्यान से, कोकोनट ट्री पे चढ़ते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर। कोकोनट ट्री पे चढ़ के कोकोनट को नीचे तोड़ लेते हैं, नीचे से फेंकते हैं और नीचे आके कोकोनट को काटते हैं किसी आरी के बिना, अपने फिडलर्स से, अपने पिंसर्स से। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम इससे ही पता चलता है कि उनके पिंसर्स कितने मजबूत होंगे। Yes, look at the size of the crab. Look, this man is holding.
Look, this man is holding. Ma'am, Yes. their pincers must be very strong. Yes. See, this is the picture. ये अभी पेड़ पे चढ़ रहा है. This crab. This is called Yes. crab. मैम ये बाकी क्रैब से बहुत ज्यादा बड़ा है. हाँ. Ma'am, it is looking just like a coconut. See? No, it is not looking like a coconut. It has dropped one coconut. इसने एक कोकोनट को, ग्रीन कोकोनट को नीचे फेंका और अपने देखो पिंसर से इसको खोद रहा है कि अंदर का पानी और मलाई को खा सके. वॉइस क्लियर नहीं आ रही. Ma'am, voice clear. Coconut ही खाता है? Yes. दूसरी चीजें भी खाते, कोकोनट भी खाते. अंडमान में कभी जाओ तो आप देख सकते हो. और यहाँ पर भी देखो ये मैम वहाँ पे सुनामी आ चुकी है. मैम ये तो बहुत कम मिलते होंगे ना, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. नहीं, अभी तो फिलहाल है, लेकिन इनके नंबर्स घटते जा रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से. यस मैम. जाते लास्ट में दिखते हैं. फोटो खिंचाते हैं. अभी देखो इसको, लॉबस्टर, श्रिम्प एंड प्रॉन्स, ये तीनों हमने किए हैं ना लेसन में. तो तीनों के अलग अलग पिक्चर देखो. लॉबस्टर ये है, श्रिम्प ये है और प्रॉन ये है. देखा है? मैम प्रॉन तो बहुत ज्यादा सिमिलर है श्रिम्प से. यस, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ. मैम प्रॉन एक तरह की फिश है ना? नहीं, दिस इज आर्थ्रोपॉड. फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपॉड है. क्रैब है. पानी का कीड़ा है. मैम प्रॉन ऐसा लग रहा है जैसे वो मेल है और जो श्रिम्प है वो लग रहा है फीमेल है. नहीं, दैट इज नॉट द थिंग. दोनों में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. श्रिम्प में भी मेल फीमेल होते हैं, प्रॉन में भी मेल फीमेल होते हैं. ये देखो डिफरेंस. मोस्टली फाउंड इन सॉल्ट वाटर श्रिम्प, यानी खारे पानी में, समुद्र के पानी में. और ये छोटे साइज में होते हैं, स्मॉलर. पार्ट ऑफ सब ऑर्डर प्लियोसाइमेटा, ये आप बाद में पढ़ोगे. और प्लेट लाइक गिल्स होते हैं इनके, और कर्ल्ड बॉडी होते हैं, ऐसे कर्ल टाइप के बॉडी होते हैं, सी अक्षर के जैसे, सी लेटर के जैसे. और प्रॉन्स में क्या है? मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये नदी के पानी में ज्यादा मिलते हैं प्रॉन्स. और ये थोड़े से बड़े होते हैं श्रिम्प से, देखो साइज. पार्ट ऑफ सब ऑर्डर डेंड्रोब्रैकियाटा. मैम थोड़े मोटे भी होते हैं. डिफरेंस है. मैम इनके अंदर थोड़ा मोटा भी है प्रॉन. इनके ब्रांचिंग गिल्स है, देखा. और स्ट्रेट इनके कर्ल्ड बॉडी होते हैं श्रिम्प के, लेकिन प्रॉन्स की स्ट्रेट बॉडी होते हैं, ऐसे. देखा डिफरेंसेस? यस मैम, ये थोड़ा बहुत भी श्रिम्प एकदम टाइप ऑफ कर्ल है. अभी अगर आप देखो, थोड़ा बहुत है. हाँ. तो ये हम आ गए पिंसर्स पे. ओके, तो ये क्रैब है, क्रैब के पिंसर्स ऐसे होते हैं. और ये लॉबस्टर है, लॉबस्टर के पिंसर्स ऐसे होते हैं. मैम लॉबस्टर के पिंसर्स काफी बड़े होते हैं. नहीं, ये एनलार्ज पिक्चर, एनलार्ज करके पिक्चर को दिखाया गया है. मैम लॉबस्टर के जो पिंसर्स है उसका टेक्सचर बहुत ही शार्प है, उसका टेक्सचर. हाँ, इसीलिए हरी को इतना दर्द हुआ. He was in pain when they bit him, when they pinched him. But that was a lesson for me. But I don't know. Very sharp pincer. Ma'am, it is a true story. That's all. Thank you. मैम इतने देर मैम आप बोली थी कि अब हमें वो वाला दिखाएंगी जब आपने एक बड़े से छोटे मतलब बड़े नॉर्मल साइज के क्रैब को वीडियो शूट किया था. हाँ तो मैम ने तो व्हाट्सएप पे भेज दिया. मैम ने सेंड किया है. मैम वो आए नहीं बट मैम आया है. नो मैम आ गया था. आ गया. मैम आ गया था, हमने देख भी लिया था. ओके, अभी बताओ. मैम देख लो आ गया, आपको भेज दिया.
बच्चों बताओ आपको ये लास्ट वाला पीपीटी कैसा लगा, जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा मैम, ऐसा लग रहा था बस देखते रहो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा था मैम वेरी मैम। नाइस। अगर आपने नेक्स्ट टाइम कराए ओके, मैम, अगर आप ऐसे मैम वेरी नाइस। बहुत खुश होंगे। सप्लीमेंट्री बहुत अच्छा लगा हमारा यस मैम, एक और बार करवाना आप हमें। आपको ये सारे वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है? आपको ये वीडियो में दिख जाएंगे सारे। अगर आपको वीडियो मिल जाए तो उस पर लाइक कर देना, ओके? और आपको मिल जाएगा। ओके मैम। ओके मैम हर वीडियो में लाइक करते हैं। ओके मैम। बहुत सारा टाइम हो गया, ओके? आज हम इसको लेट्स कॉल इट अ डे एंड लेट अस डू शांति पाठ एंड एंड द क्लास, ओके? क्लास अच्छा रहा आज आपका? यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, लेट अस जॉइन हैंड्स एंड डू शांति मैम पाठ। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। शांति शांति शांति। सायरा मैम, सायराम थैंक यू थैंक यू and bye ma'am and thank you. Yes. थैंक यू मैम। Welcome. थैंक यू मैम। सायरा मैम, बाय मैम। Bye. सायरा Bye. बाय मैम। सायरा मैम बाय मैम। तो आपके पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं ना? हाँ, yes. ओके मैम। Okay, you can leave the meeting. यस मैम।